شمالی وزیرستان میں مکی گڑھ چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ کی مؤثر جوابی کارروائی میں حملہ پسپا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ ادھر شمالی وزیرستان میں ایک نالے سے 5 لاشیں ملی۔ لاشوں پر گولیوں کے نشان واضح ہیں۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ کل اسی علاقے میں خور قمر کی فوجی چوکی سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گروہ نے فوجی چوکی پر حملہ کیا تھا۔ کوئٹہ کے ایئرپورٹ روڈ پر درویش آباد کے قریب پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ چند افراد مذموم مقاصد کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ معصوم پی ٹی ایم ورکرز اور سپورٹرز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے، بہادر قبائلیوں کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ دہائیوں پر مشتمل جدوجہد کے ثمرات ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محسن داور اور علی وزیر کی فوج کے خلاف نعرے بازی۔ حملے کا مقصد دہشت گردوں کے سہولت کار کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ علی وزیر 8 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ محسن داور فرار۔ آئی ایس پی آر کی تصدیق۔ ریاست کے مخالفین کو چھڑانے کی کوشش کی گئی۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا رد عمل۔ محسن داور کیسے حملہ کرے گا کسی چیک پوسٹ؟ بلاول اور مریم فوج پر حملہ آوروں کی وکالت کرنے لگے۔ بلاول نے علی وزیر اور محسن داور کو معصوم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں علی وزیر اور محسن داور کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ مریم کا بھی حملہ کرنے والوں کے حق میں ٹویٹ۔ کیا ماڈل ٹاؤن کی لاشیں بھول گئیں؟ واقعے پر سیاست قومی جرم ہوگی۔ حقائق پارلیمنٹ کے سامنے آنے چاہیے۔ شہباز شریف کا رد عمل۔ محسن داور اور علی وزیر پختونوں کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور قبائل نے قربانیاں دی ہیں۔ چند لوگ قبائلی علاقوں میں بحالی اور ترقی کا عمل سبرداشت کرنا چاہتے ہیں۔ پاٹا کے عوام کی بحالی اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ یوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتظامات۔ شہر شہر تیاریاں مکمل۔ ایم اے جناح روڈ کراچی بند۔ جلوسوں کے روٹس پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ سرچ آپریشن میں متعدد مشتبہ افراد زیر حراست۔ لاہور میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا آج دوسرا روز ہے۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پولیس کی کارروائی۔ 4 رکنی ڈکیت گروہ گرفتار۔ اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ملزموں میں عاشق حسین، وحید بخش، امیر حسین اور سلیم شامل۔ مقدمات درج۔ فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر ہوزری فیکٹری میں آتش زدگی۔ فیکٹری کی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ مشینری سمیت تمام سامان جل کر تباہ ہو گیا۔ ریسکیو کی 10 گاڑیوں نے 8 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ گوجرانوالہ کے تھانہ گرجاک کی حدود سے 3 سالہ بچی کے اغوا کا معاملہ۔ 11 روز بعد مخفی بچی ضمیر فاطمہ کی لاش مل گئی۔ والدین غم سے نڈھال۔ علاقے میں فضا سوگوار۔ ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسز میں طلبی کا معاملہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ़ोन, इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली अवलीन तरजीह है, इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी नायब सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी, बादशाही मस्जिद भी जाएंगे। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी आज पाकिस्तान आएंगे। आला ज़दा का तिजारती वफ़द भी हमरा होगा। अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। शामी फ़ज़ाए की शमाल मगरबी इलाके पर बमबारी, 12 अफराद हलाक। बमबार शामी सुबह हम्मार में की गई। बागियों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान होने वाली ये सबसे खतरनाक बमबारी थी। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात नताइज की आमद का सिलसिला जारी। यूरोपियन पीपल्स पार्टी 179 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर, SND 152 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अलायंस ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेट्स फॉर यूरोप को 107 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूँ सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में मक्कीगढ़ चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। ISPR के मुताबिक वादी शवाल में होने वाले दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया गया है। सिपाह की मौसर जवाबी कार्रवाई में हमला पसपा कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में गश्त के दौरान 5 लाशें मिली हैं। 5 अफराद की लाशें एक नाले से मिली हैं। नाला खर कमर की फौजी चौकी से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। लाशों पर गोलियों के निशानात भी वाज़ेह हैं। शनाख्त का अमल जारी है। खुर कमर बोया का वही इलाका है जहाँ गुज़िश्ता रोज़ शरपसंद अनासर ने फौजी चौकी पर हमला किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में मक्कीगढ़ चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक वादी शवाल में होने वाले दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया गया है। सिपा की मौसर जवाबी कार्रवाई में हमला पेशपा और फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद होने की इतला है। उधर शिमाली वज़ीरिस्तान में गश्त के दौरान 5 लाशें मिली हैं। 5 अफराद की लाशें एक नाले से मिली हैं। नाला खर कमर की फौजी चौकी से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मुरासले के मुताबिक तमाम अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मुरासले के मुताबिक तमाम अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर मुश्तिल अफराद का हमला। DG ISPR कहते हैं, चंद लोग PTM के मासूम कारकुनों को अपने मज़मूम मकासद के लिए तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दहाइयों पर मुश्तमिल कौमी जिद्दोजहद और बहादुर कबायली अवाम की कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले का मामला। DG ISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मासूम PTM वर्कर्स और सपोर्टर्स का ख्याल रखने की जरूरत है। चंद लोग PTM के कारकुनों को रियासती इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि अशरों पर मुहित कौमी जिद्दोजहद के समरात को नुकसान पहुँचाने और पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कबायली आवाम की कुर्बानियों को ज़ाया करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमियत और नफरत का जहर फैलाने के बाद असलहा भी उठा लिया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने ज़ेर असर साथियों के हमरा मीरान शाह के इलाके खर कमर में फौजी चौकी पर हमला करके 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। रुकने असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकने असम्बली मोहसिन दावड़ हुजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया।
पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नौजवानों को गुमराह करने वालों की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मुल्क दुश्मनों के आलाकार अली वजीर, मोहसिन दावड़ और उनके ज़ेर असर साथी तमाम हदें फैलांग कर पाक फौज पर हमलावर हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़ेर हिरासत मुश्तबा दहशतगर्दों के सहूलतकार को रिहा करवाने के लिए फौजी चौकी पर हमला कर दिया। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने मजमे को उकसाया, मुसल्लह साथियों के साथ पाक फौज पर हमला करके 5 जवानों को जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डोगा में 24 मई को एक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फौजी जवानों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक फौजी जवान पेट में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अगले रोज 25 मई को 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। आज मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने ज़ेर असर मुसल्लह अफराद के हमरा गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए फौजी चौकी पर धावा बोला। ISPR के मुताबिक मोहसिन दावड़ और अली वजीर की क़यादत में मुसल्लह गिरोह ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में खार कामर चेक पोस्ट पर हमला किया। गिरोह दहशतगर्दों के मुश्तबा सहूलतकार को छुड़वाना चाहते थे। मुसल्लह गिरोह ने पहले चौकी पर मौजूद जवानों को इश्तियार दिलाया और फिर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिससे 5 जवान जख्मी हो गए। फायरिंग का तबादला हुआ तो 3 हमलावर मारे गए और 10 जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकन असम्बली मोहसिन दावड़ हजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया।